हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Harappa civilization. There is a most important Harappa civilization for the UPSC examination view and the all class student. There is a subject of the history and there is a syllabus of the Harappa civilization. Harappan civilization was discovered in 1920 to 22 when the two of its most important sites were excavated. There is a where a Harappa on the bank of the river Ravi and the Mohenjo-daro on the bank of the Indus. The first was created by the D.R. Sahni and the second by the R.D. Banerjee. There is the most important, their finder is the D.R. Sahni and second was the R.D. Banerjee. On the basis of the archaeological is a finding that Harappan civilization has been to the dated between to the 2600 BC to the 1900 BC and it is one of the oldest civilization of the world. It is also sometimes referred to as the Indo-Valley civilization. There is also called to the Indo-Valley civilization because it is the beginning to the majority of the settlement discovered were around the plain of the rivers Indus and it is a tributaries. But today it is a term as the Harappan civilization because Harappa was the first site which is the their light or presence of this civilization. Besides the descent of the archaeologically is a finding indicate that is the civilization was spread most behind the Indus Valley and therefore it is a better it is a call to the Harappan civilization. There is a most important Harappa civilization. The recently archaeological finding indicated that the civilization was spread much beyond the Indo Valley, and therefore it is the better it is called as the Harappan civilization. It is the first urban culture of India, and it is a contemporary with their other ancient civilization of the world, such as those of Mesopotamia and Egypt. The Harappa civilization did not be appear all of a sudden. It is developed gradually from earlier is a Neolithic village culture. It is a belief that is a better technology to the exploit. There is a fertility plan of the rivers Indo-Mine has resulted in increasing of agriculture production. And this led to be a production, a large surplus to the feed and the maintain non-agriculture people such as the artisan, administration, etc. It also help in the promotion of exchange or trading contact with the distance or the distance regions, and it is a bothly prosperity to the Harappan people, and they were able to the set up sites. There is a most important here. By around the 2000 BC, the server origin culture developed in a different part of the subcontinent, which is also based on the use of the stone and copper tools. And this is a Calothotix is the culture which led outside their Harappan zones were not so rich and the flourishing. And this is a basically ruler in the nature. The origin and development of this culture is a placed in there is a chronologically span between to the Sirica is a 2000 BC to the 700 BC, and this is are found in the western and central India are described as a non-Harappan is a Calothotix culture. That is the most important here. यदि हम बात यहाँ पर करें हड़प्पा की सभ्यता की खोज के विषय में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। कहते हैं 1920 में लेके 22 में की गई थी, यानी 1920 से लेके जो है 22 में इसकी खोज की गई थी, जब इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई की गई थी। ये स्थान थे रवि नदी के किनारे बसा हड़प्पा और सिंधु नदी किनारे बसा मोहेंजोदारो। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। पहले स्थान खुदाई की गई थी इसमें जो है D.R. साहनी द्वारा, यानी पहले स्थान पर खुदाई किसने किया था? D.R. साहनी ने किया था। दूसरे की ओर जो है R.D. बनर्जी द्वारा किया गया था। यानी इन दोनों ने इसकी खोज बहुत ही सरलतापूर्वक किया था। प्राथमिक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को जो है
2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी देखा जाए तो ये विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना गया है और इसके समय अवधि जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है। कई बार इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आरंभ में इसकी जितनी भी बस्तियां खोज हुई वे सभी सिंधु नदी या इसकी सहयोगी नदी के आसपास ही मिला और इसके आसपास के मैदानों में स्थित थी। परंतु आजकल इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा ही वह पहला स्थान था जिससे इस सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया। और इसके अतिरिक्त हाल ही के जो पुरातात्विक अवशेषों से संकेत मिला है कि सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के पूरे के सुदूर विस्तार तक फैला हुआ था। इसलिए ये जो है बेहतर है कि इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारें। यानी इसको हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाने में ही सही है। ये भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन ही है। यानी इसके ही अंतर्गत जो है टापिया और जो है मिस्र की जो है सभ्यता इसी के ही समकालीन है। समकालीन का अर्थ होता है कि इसके आसपास ही माना गया है। हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन और सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी सिर्फ पुरातात्विक खुदाइयों पर ही आधारित है, क्योंकि उस काल की लिपि को भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ है, इसका विकास धीरे धीरे नवपाषाण युग की जो है ग्रामीण सभ्यता से हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान क्षेत्र से अधिकतम उपज लेने के लिए बेहतर तकनीक का उपयोग के परिणाम स्वरूप कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गई और इसके फलस्वरूप इतनी बढ़ती फसल पैदा होगी जिससे गैर कृषि आबादी के लोगों और प्रशासकीय वर्ग इत्यादि के लिए जो है खाद्य और उनके जीवन यापन के लिए उत्पादन उपलब्ध होने लग गया। इसे दूर दराज के प्रदेशों के साथ विनिमय और व्यापारिक संबंध बढ़ने में भी सहायता मिली होगी। इसे हड़प्पा के लोगों ने समृद्ध आई होगी और वे शहर बसाने के योग्य हो गए होंगे। कहते हैं 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में अनेक प्रादेशिक सभ्यताओं का विकास हुआ और ये भी पत्थर और तांबे के औजारों के उपयोग पर ही आधारित थी। ये ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थी, अधिक समृद्ध और फली फूली नहीं थी। बुनियादी तौर पर ये सभ्यताएं जो है ग्रामीण प्राकृतिक की थी और कलात्मक अनुसार इस सभ्यता के उद्भव और विकास का काल 2000 ईस्वी से लेकर 700 जो है ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ये सभ्यताएं पश्चिमी और मध्य भारत में मिली और इन्हें जो है गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण यानी सभ्यता के रूप में उल्लेखित किया गया। अब देखते हैं हमारा जो है चैप्टर के आधारित पहला पॉइंट क्या है। There is a most important topic here, arrive, origins and extent. Extent is the most important here, origins. There archaeological is remind show that before the emergence of the political civilization, there people live in a small village. As the time passed, there was the emergence of a small town will ultimately lead to a fully fledged town. And during the Harappa period, the worst period of Harappan civilization is the fact divided into three phases. There is the most important here. The Harappa civilization is divided here or three phases. There is the most important. The first phase here, the earlier Harappan phase is a 3500 BC to 2600 BC. There is the most important here. It was marked by some town planning in the form of mud, structure, elementary trades, arts and craft, etc. And the second here, there is the most important a mature Harappan phase mean 2600 BC to 1900 BC. There is also important, and it was the period in which there we are noticed well-developed town with the worn bricks, structure, inland and the foreground trade, craft, various types, etc. That is the most important. But here also important here third point. The third point here, the later Harappan phase. There is the time of 1900 BC to the 1400 BC. It was there is a phase of decline during which maybe cities were abandoned and their trade artists favored to lead to there is a gradually is decline of the significance urban trades. There is the most important here. Let us first have a glance
over to geographical extent of the Harappan civilization. There, the archaeological excavations reveals that the culture was spread over a vast area, which include not only their present-day state of India, such as Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, West Uttar Pradesh, but also is a Pakistan and some part of Afghanistan. There is the most important here. The Harappan civilizations is area here Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Western Uttar Pradesh, and also the Pakistan and some part of Afghanistan here is the most important. And some important site of this civilization are is a Madan is a Jammu and the Kashmir as a short ghai of Afghanistan. Harappa is a Western Punjab, Pakistan is a Mohenjo-daro and Chandrodaro in the Sindh. Is Kalibanga and the Rajasthan. Lothal is the Dorovira and the Gujarat as the Banwalis is the Rakhu Gari is the Haryana. And Ahmedabad is the Maharashtra will the Sutkandar on their Makram coastal near of Pakistan-Iran border and the westernmost site of Harappan civilization and is a Aligarhpura is a Western Uttar Pradesh is a mark in the terrain most are limit. There is a most important here the area of the Harappan civilization found here. The location of the settlement of suggests that Harappa, Kalibanga on or Ghaggar, Hardak is generally associated with there is a loss of river Sabarmati. Mohenjo-daro was their heartland of the civilization and most of the settlement are localized in their religions and this area has a content to uniform feature is a term of the soil types, climate and substance or pattern. And the land was of flat and depended on the monsoon and the Himalayan river for the supply of water. Due to the district of the geographically feature, agro-pastoral is the economic was the dominant feature in the regions. And besides there is the urban settlement of the Harappan where on many sites of inhabited by there is the primitive or communities is a consisting of the stone age, hunter-gathering or pastoral nomads which is the exit of side by side. Some side is serve as a port of trading out of post. It is maybe noted that the important determinant of the civilization are well is a planet cities and a specialized art and craft is a trade, taxations, script, etc. In this is a respect Harappan culture is a fulfill all this is a criteria for begin called as the urban culture. देखिए हमारा जो यहाँ पर आया है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो कहते हैं कोई भी एग्जाम हो इसमें जो है हर एग्जामिनर जो है हड़प्पा सभ्यता कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर डालता है, चाहे वो आपके जो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हो, चाहे इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो हर जगह जो है आपको जो है हड़प्पा सभ्यता कल्चर के विषय में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए जो है ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो या तो इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जो है स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उनके सिलेबस में हड़प्पा कल्चर है तो इसका मतलब है ये टॉपिक उनके लिए जो है रामबाण की तरह होगा, एक कहते हैं ब्रह्म अस्त्र की तरह होगा, क्योंकि ये चैप्टर समझ लेने से कई मानने में उनको जो है कई क्वेश्चन जो है जो सही सही कर सकते हैं। इवन की बहुत बातें जो है इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर, तो इसलिए इसको आप जो इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना और पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें था क्या। कहते हैं जब आप पूरी चीज़ को समझ लोगे ना अच्छे से तो आपके पास समझने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा और सभी आंसर जो है बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में दे सकते हो। तो चलिए अधिक बात न करके हमारा टॉपिक जो है उस पर आते हैं जिसमें हम है उद्भव और विस्तार। देखिए हड़प्पा कल्चर का उद्भव कैसे हुआ और इसका विस्तार कहाँ तक है, ये बात सबसे पहले माइंड में आपके आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्राथमिक अवशेषों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले लोग छोटे छोटे गाँवों में रहते थे। जनरली सी बात है, हमें जो है प्राथमिक अवशेष मिले उसी से हम पता चलेगा, जिसको हम पहले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समय बीतने के साथ साथ छोटे कस्बे बने और इन कस्बों में हड़प्पा काल के दौरान पुनः विकसित शहरों का विकास हुआ।
वास्तव में हड़प्पा काल की संपूर्ण अवधि को 3 चरणों में बांटा गया है। देखिए ये 3 चरण जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने बहुत चीज़ उनके बदलाव को देखेंगे। आरंभिक हड़प्पा काल जो है अगर जो है यहाँ पर 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व इस काल के विस्तार का उल्लेख मिलता है, और इसके मिट्टी से बने ढांचे, आरंभिक व्यापार, कला और शिल्प इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। यानी जो है 3500 से लेकर 2600 के बीच में देखा जाए तो इनका जो घर का स्ट्रक्चर होती थी मिट्टी से बनाई जाती थी, लोग व्यापार भी करते थे, कला शिल्प इत्यादि में काफ़ी सक्षम थे। अगर दूसरे काल की बात करें जो है प्रवृत्त हड़प्पा काल कहलाता है, जो 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक माना गया, यानी एक समय अवधि दी गई है। इसमें क्या था, यह जो वह चरण है जब उन्हें जो है भट्टे में पकी हुई ईंटों से बने ढांचे वाली जो है भली भांति विकसित शहर, स्वदेश और विदेश व्यापार और विभिन्न प्रकार के शिल्प देखने को मिला है। देखिए सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो कि ये लोग जो थे शहर में रहते थे और हर तरह के व्यापार जो है वो करने में सक्षम थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है ना। उसके पश्चात थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उत्तर हड़प्पा काल के रूप में इसको लिया गया है, और इसकी समय अवधि आपको पता ही है क्या है, ठीक है, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, और यह पतन का काल था। ठीक है, यानी देखा जाए तो 19वीं शताब्दी से 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर जो है 1400 ईस्वी पूर्व तक ये कहते हैं पतन का काल था। देखिए पहले में क्या था, गांव में विकास हुआ उनका, फिर वो शहरों की तरफ चले गए, उसके बाद जो है उनका उत्तर जो हड़प्पा काल में आए तो इनका पतन का काल देखने को मिला। तो यही बात कहते हैं कोई भी सभ्यता अगर उच्च कोटि पे पहुंच जाती है तो उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। तो ये कोई दो राय नहीं, सच्चाई है। ये बात हमारे जीवन पे भी आधारित होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को महान बड़ा कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी पतन का जो है स्टार्टिंग यहीं से हो गया है। तो ये हड़प्पा कल्चर हमें बहुत बातों को जो है समझाती है। यह पतन का काल था जिसके दौरान शहर जो है उजड़ने लग गए थे और व्यापार समाप्त हो गया था, जिससे धीरे धीरे शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं लुप्त होती चली गई। कहते हैं आइए सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के जो भौगोलिक विस्तार का जायजा लेते हैं कि भाई जो इसकी भौगोलिक विस्तार है कहाँ तक फैली हुई है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। यदि हम बात करें पुरातात्विक खुदाइयों से पता चला है कि यह सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में फैली थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सुराग मिला है। इसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो है कहाँ तक ये फैली हुई थी, जिसमें न सिर्फ भारत के आधुनिक राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे, बल्कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग भी शामिल थे। आप सोचिएगा कि उनको ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। दोस्तों ये पता तब चलता है जब हमें उसी प्रकार के कुछ अवशेष जो है उन क्षेत्रों में भी हमें मिलता है, चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे अफगानिस्तान में। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र में अगर वो चीज़ मिला है जो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिली है और उधर साइड भी मिली है, तो इसका मतलब है ये इसका विस्तार को जो है रिप्रेजेंट करता है। इस सभ्यता के कुछ स्थान जो है जम्मू और कश्मीर में जो है माडा, अफगानिस्तान में जो है सारत तुलाई और पश्चिम जो है पंजाब में, पाकिस्तान में हड़प्पा सिंधु में मोहनजोदड़ो और जो है चंदूधारो, राजस्थान में कालीबंगन और गुजरात में लोथल और जो है घोलावीरा, हरियाणा में बनवाली और जो है राखी गाड़ी, महाराष्ट्र में दाई मावाद और जबकि मकरान तट पश्चिम ईरान के सीमा के पास है। पर स्थिति और तुलको गोंदोर हड़प्पा सभ्यता सुदूर पश्चिम छोड़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीर इसके सुदूर पूर्वी सीमा है। तो ये आप समझ सकते हो कि इसका विस्तार हर क्षेत्र में देखने को मिला है। इसका मतलब ये सभ्यता जो थी बिल्कुल विकसित थी, यानी ये सभ्यता हमसे भी काफ़ी आगे थी और इन्होंने हर बात जो है इसके समक्ष आती है। जब हम इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी सभ्यता कितनी विकसित थी और उनकी क्या विशेषताएँ थी। कहते हैं आबादियों के स्थान के संकेत हमें तब मिले जब हड़प्पा सभ्यता के जो है कालीबंगन जो है घंगर हकड़ा नदी के किनारे पर, जिसे आमतौर पर लुप्त नदी सरस्वती के साथ भी जोड़ा जाता है, यानी घाघर जिसको हम हकड़ा नदी के किनारे पर बसा था, जिसको आज जो है लुप्त सरस्वती नदी के साथ जोड़ा जाता है। मोहनजोदड़ो की धुरी पर जो है इस सभ्यता का प्रमुख स्थल था, यानी मोहनजोदड़ो की धुरी पर जो है इस सभ्यता का मुख्य स्थल था और अधिकांश आबादी इसी क्षेत्र में जो है स्थित थी। मिट्टी की किस्म और वातावरण, रहन सहन की पद्धति से परिचय में इस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषता भी हमें पता चली है। यहाँ की जो है भूमि समतल थी और सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए मानसून और जो है हिमालयी नदियों पर निर्भर होते थे। यानी देखा जाए तो ये भी मानसून पर निर्भर थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हिमालय नदियों पर ये
निर्भर थे, यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती थी इससे वो काफ़ी फायदा उठाया करते थे। यहाँ की विशेष भौगोलिक विशेषताएं और जो है कृषि पशुपालन संबंधी व्यवस्था इस क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक था। हड़प्पा की शहरी आबादी के अतिरिक्त अनेक ऐसे स्थल थे जहाँ पर पाषाण युग के शिकारी जो है संग्रहकर्ता और घुमंतरू चरवाहों वाला जो है प्रागैतिहासिक काल के समुदाय के लोग भी साथ साथ रहा करते थे। कुछ स्थल बंदरगाहों और व्यापारी स्थलों के रूप में काम में लाए जाते थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शहरीकरण को निर्धारित करने के प्रमुख कारक व्यापारी था, यानी अगर देखा जाए तो शहर को जो जोड़ने वाला मुख्य धंधा था वो व्यापार था, कर प्रणाली थी और लिपि इत्यादि होते थे। शहरी सभ्यता कहलाए जाने के लिए हड़प्पा सभ्यता इन सभी मानकों पर खरी उतरना बहुत जरूरी था। अब देखिए इसके विस्तार के बारे में और अगर हमें समझना है तो हमें इसके मैप भी देखने पड़ेंगे। ये इंग्लिश में नहीं था बट हिंदी में आपको मैप दिखेगा और मैप से आप समझ सकते हो कि इसकी जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस मैप में आप पंजाब के जो मैप भी दिख रहा होगा आपको, ये पूरा विस्तृत मैप है। और इलाहाबाद हो या लाहौर हो, रवि हो या हड़प्पा तो मुल्तानी, बालू, भगवानपुरा, बहुत सारे क्षेत्र जो है जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कल्चरों का जो है विस्तार पूर्वक आप अध्ययन कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो इसका मुख्य केंद्र जो था मोहनजोदारो को ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो थी फैलाव अगर अफगानिस्तान तक थी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये मैप भी साफ शब्दों में दिखाने के लिए तैयार है। और इसको आप समझ सकते हो कि इसकी फैलाव काफ़ी विस्तृत थी, यानी काफ़ी क्षेत्रों में जो ये सभ्यता थी फल फूल रही थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इस सभ्यता का अंत का कारण भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा। टाउन प्लानिंग, देयर इज अ पार्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा civilization, there is the most important here. The most interesting urban feature of Harappan civilization is it is a town planning. It is a marked by the considerable is a uniformity of through. There is a one can is a notice some original variation as well. The uniformity is a notice in the layout of the town, streets, structure, brick size, and rain, etc. Almost all the major cities, Harappa, Mohenjo-daro, Kalibanga, and others, are divided into two parts. Cathedrals is a higher mound on the western side, and there are lower town on the eastern side of the settlement. The cathedrals is a contain a large structural which a mind has been functioned as administrative or utility center. The residential is buildings are built in the lower town. The stairs intersect each other at the right angle in the criss-cross pattern. There is a most important here, a criss-cross pattern here is a used there as Harappa civilization. There is a most important pattern, or it is a divide. Their city is a several residential block. Their main street is connected by the narrow land. There is a door of the house open in this land, not a main streets. There is a most important here. Street is a main. There is a not open main streets. There is a most important. The houses of the common people, however, differed in a size from a single room house in a Harappa to the bigger structure. The house were largely built of the is a burnt brick. There is a burnt brick used for the Harappan civilization on this time. The bigger house had many rooms surrounding a square courtyard, and this house where is provided with the private wells, kitchens, and working platform. There is the most important here. The difference in the size of the house suggests that a rich live in larger house, whereas there are one room buildings or a barcels. The mind has been to the intended from to the poorest section of society. The drainage system of the Harappa was the elaborate and the well lateral dot, and the average house is a drain which is open into the straight drain, and this is a drain is a way to cover with there is a manhole brick or stone slab which is could be removed from a cleaning. There is a corn structure at a regular interval by the side of the streets for the cleaning, and this so that their people were well acquainted with the science of sanitation. There is a most important here. Here show the is a great bath of Mohenjo-daro. There show the biggest is a bathing place on Mohenjo-daro. There is a great bath. There is the most important here is a totally civilization. Here is a great civilization.
यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण नगर योजना। देखिए नगर योजना जो है हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। नगर योजना देखिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो नगर योजनाएं बहुत विशिष्ट थी और ये पूरी तरह से जो है हमारे आज के समाज जैसे विकसित थी उससे भी बेस्ट थी। तो कहा जा सकता है कि उनकी सभ्यता काफ़ी उस समय विकसित थी। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो है दिलचस्प विशेषता यही है कि यहाँ की नगर योजना है इसमें अत्यधिक जो है समरूपता देखने में आई है। यद्यपि कहीं कहीं पर जो है प्रादेशिक रूप से विविधता भी देखने में आती है। नगरों जो है गलियां, मकानों के ढांचे, ईंटों के आकार और नालियां इत्यादि की योजनाओं में जो है एकरूपता दिखाई देती है। लगभग सभी मुख्य स्थलें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन और अन्य दो भागों में जो है विभाजित किया गया है। पश्चिम की ओर एक ऊंचे चबूतरा पर बना किला और आबादी के जो है पूर्वी भाग में बना निचला नगर। किले में बड़े ही ढांचे बने हुए हैं जो शायद शासकीय या धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र के रूप में कार्य करते होंगे। देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प की बात यही बात यहाँ पर क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर देखा जाए तो ऊपरी जो चबूतरा वाला भाग थी वो काफ़ी विकसित थी और वहाँ पर बड़े बड़े किले बनाए गए थे। तो हो सकता है कि वो राजा का जो है राजमहल हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो वहाँ पर होता हो, तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आबादी जो होती थी वो निचले नगर में रहती थी, ये भी बात बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के समय में भी देखते हो अगर देखा होगा कोई भी अगर आप धर्म वाले कोई ग्रंथ ले लो तो उसमें यही बात दर्शाती है कि राजमहल जो होता है विशिष्ट जगहों पर होता है, उसके आसपास नगर बसी होती है। सेम ऐसा ही सिस्टम देखने को मिला है। या हो सकता है कि बहुत बड़ा मंदिर हो क्योंकि ऊंचाई पे मंदिर होती है और उसके नीचे जो है शहर गांव बसा हुआ हो। तो इस प्रकार के दृश्य जो है वहाँ काफ़ी जो है आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कई साइंटिस्टों ने कई जो है खोजकर्ताओं ने यही बात इसको बताया है कि ये अनुष्ठान के लिए जो है धार्मिक केंद्र के रूप में जो है उच्च स्थान को जो है रिप्रेजेंट किया था और निचला स्थान जो था लोगों के रहने के लिए था, आवास क्षेत्र थी। तो ये बातों को इन्होंने साफ शब्दों में जो है यहाँ अलग करने की कोशिश भी किया है और ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहते रिहायशी भवन निचले नगरों में बसाए गए थे। जैसे मैंने कहा था रिहायशी शहर यानी जैसे कि होता है गांव जहां पर लोग रहते हैं वो निचले नगरों में बने हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सड़कों के ढांचा की बात करें हम इस प्रकार बनाया गया था कि ये एक दूसरे से मार्ग को समकोण पर काटते हुए निकलते। देखिए ये बहुत काफ़ी इन्होंने साइंटिफिक माइंड यूज़ किया था कि वो एक दूसरे मार्ग को जो है समकोण पर काटते हुए निकलते थे। इससे शहर अनेक रिहायशी खंडों में बंट जाता था और मुख्य जो है मार्गों को छोटी गलियों के साथ जोड़ दिया गया था। घरों के द्वार मुख्य मार्ग पर न होकर इन संकीर्ण गलियों में खुलते थे। देखिए हमारा भी घर होता है, हाईवे पे तो नहीं होता है ना, छोटे मोटे गलियों में बनाई जाती है। हाईवे तो मेन होती है जहाँ पर सब कुछ चलता है। सेम कंडीशन इनमें भी देखने को मिला। यही तो इनकी विशेषताओं में से एक है कि घरों के द्वार मुख्य मार्ग पर न होकर उन संकीर्ण गली में खुलते थे, यानी जहाँ पर छोटे छोटे रास्ते बनाए गए थे। अधिकांश मकान जो थे भट्टी में पक्की ईंटों से बनाए गए थे, यानी उनको ईंटों का भी ज्ञान था तभी उन्होंने ईंटे का जो है बनाया। बड़े घरों में कई कमरे होते थे जिसमें एक जो है चौकोर आंगन भी होता था। अगर आप पुराने समय में गांव में चले जाओ तो चारों तरफ घर होते थे और बीच में आंगन होती थी। तो कुछ इस प्रकार के दृश्य जो है हमें मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। इस घरों में अपने निजी कुएं होते थे, रसोई घर होता था, स्नानगार होते थे और चबूतरे भी होते थे। घरों के आकार में जो है अंतर ये संकेत मिलता था कि धनी लोग बड़े घरों में रहते थे और एक कमरे के घरों या बरकरों में जो है समता समाज के निर्धन वर्ग के लोग ही रहते होंगे। यानी बात यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो निचले क्षेत्र होते थे जहाँ पर एक कमरा का रूम होता था उसमें निर्धन लोग ही रहते थे, जैसे आज के समय में भी देखने को मिलता है। बड़े लोग जो होते थे संभवतः बड़े घर में रहते थे, उन पर हर तरह की सुविधाएं उनको मुहैया था, जैसे कि आज के समाज में भी होता है। हड़प्पा काल के लोगों के जल निकासी व्यवस्था बहुत ही विकसित थी और कहते व्यवस्थित भी थी। हर घर में नालियां थी जो गली के नालियों से जाकर मिलती थी और ये नालियां ईंटों से बने चरमखोरी यानी मन होश पर जो है पत्थर की सिल्ली से ढकी होती थी, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था, जिन्हें नियमित जो है अंतराल पर गलियों के किनारे बनाया जाता था। इससे पता चलता है कि उन लोगों की सफाई विज्ञान की अच्छी जानकारी थी। अगर हम एक स्नानगार के दृश्य देखें, चलिए हम देखते हैं एक स्नानगार जो है उसका दृश्य।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोहनजोदाड़ो का जो है विशाल स्नानगार कुछ इस तरह से नज़र आता है, जो कि बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट को दर्शाता है कि यहाँ पर जो है सामूहिक रूप से जो है व्यक्ति नहाते थे, स्नान करते थे, और ये कुआं इतना बड़ा मिला है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को दर्शाता है और ये क्लियर करता है कि उनकी सभ्यता कितनी विकसित रही होगी और किस तरह से जो है वो अपना जो है जीवन यापन करते थे। क्योंकि स्नानगार से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर सामूहिक रूप से बहुत से लोग जो है स्नान करते थे। हो सकता है कि ये मेल के लिए बनाया गया, हो सकता है ये फीमेल के लिए बनाया गया हो, तो इसमें जो है विचारधारा अभी तक जो है अपने कर ही रहे हैं और आने वाला समय में सब बात की खुलासा हो जाएगा। The next topic is some major structural is a remains of the Harappan town. There is the most important, they are a part of Harappa civilization. There is the most important is the Mohenjo-daro, the Great Bath is the most important structure. It is surrounding by the corridors on all sides as the approach at the either end by the flight list of steps in the northern and south. A thin layer of the bitumen was applied to their bed of the bath to ensure that is the water did not seep in. Water was supplied by their large well in their adjacent of room, and there was the drain from to the outlet of the water. The bath was surrounding by the set of the room on side for a changing cloth. A scholar believed that is a great bath. The scholars believed that a great bath was used to tell bathing. And the other structure there is localized on the best of great bath is the granularis. It is a consist of the several rectangular block of brick where storing grain. A granalis has also been to the found at the Harappa. It was the row of the circular bricks platform which were used for the threshing grain. And this is known as from the finding of the capfos of wheat and well from here. A lothal as a brick structure has been to identify as the door yard is mean to the breathing sheaves and the handlings of cargo. And here show there is suggests that the Lothal was important port and the trading center of the Harappa people. And show their diagram. The show their picture here the dockyard of the Lothal. There is a most important here, and it is important show there Lothal is a dockyard of the Lothal side. यहाँ पर अगर बात करें हम हड़प्पा के नगरों के कुछ प्रमुख ढांचों के अवशेष, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हमने जो किया था पहले जो विशाल स्नानगार के बारे में आपको बताया था, तो कहते हैं अगर हम देखें जो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानगार है एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। ठीक है, इसकी चारों ओर जो है बरामदे बने हैं और उत्तरी और दक्षिण दोनों छोरों पर जो है सीढ़ी बनी हुई है। कहते हैं स्नानगार के जो है फर्श पर जो है बिटुमुन कोयले का जो है स्तर किया गया था ताकि पानी का रिसाव न हो सके, यानी पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन जो है कोयले का जल जो है पल स्तर बनाया गया था और साथ के कमरे के पानी की आपूर्ति होती थी और पानी की निकासी के लिए नाली बनाई गई थी। अब समझ सकते हो कि स्नानगार इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। स्नानगार के चारों ओर किनारों पर कुछ कमरे बने थे जो शायद कपड़े बदलने के काम में आते थे होंगे, यानी वहाँ पर छोटे छोटे रूम भी बने होते थे। तो ये तो साफ हो रहा था कि भाई यहाँ पर जो है कपड़े बदलने के लिए ही इसका काम में लाया जाता था। विद्वानों का मत है कि विशाल स्नानगार जो है धार्मिक क्रियाओं के लिए स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता था, यानी जो ये स्नानगार है धार्मिक क्रियाकलापों के लिए जो है सामूहिक रूप में बनाया गया था। और विशाल स्नानगार के पश्चिम की ओर जो है अन्न भंडार के लिए एक अन्य जो है कठोर स्थित है, यानी जो है इसमें अन्न भंडार के लिए एक जो है कोठरी बनाई गई थी। इसमें अन्न के भंडार के लिए ईंटों से बनाई कई जो है चोकड़ों खंड बने हुए हैं। हड़प्पा में भी एक कोठार मिला है, इसमें ईंटों से बने गोल चबूतरे की पांति हैं जो शायद अन्न की जो है कुटाई के लिए उपयोग में लाए जाए होंगे। यानी अगर देखा जाए तो अन्न की कुटाई के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर पुण्य था। इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त गेहूं और जौ के भूसे के छिलके से हमें प्राप्त होती है। लोथल में ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जिसे हम जो है गोदीवारा माना जाता है और यहाँ जहाज़ों के लंगर डाले जाते थे होंगे और ये माल के उतारने चढ़ाने काम में लाया जाता होगा।
इसे ये संकेत मिलता है कि लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी था। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोथल का हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे डायग्राम में भी यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोथल का जो है गोदीवारा, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चित्र में जो है आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा कि किस प्रकार के वहाँ के जो जगह है दिखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बातों को जो है यहाँ समझाने के लिए ये डायग्राम भी काफ़ी पर्याप्त काम कर रहा है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज दे आर अ पार्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। द इकोनॉमिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर कम द फर्स्ट पॉइंट एयर एग्रीकल्चर। The agriculture is a prevalence of their Harappa civilization was based on the flourishing economical activities such as the agriculture, art and craft and trade. The ability of fertility is Indo-aluminums of contribute to the scrap surplus is the agricultural production. It is a help in the Harappan people to induce of in exchange and the both internal and external. With the other and the also developer is a craft and industries. Agriculture along with the is a pastoralism is a cattle rearings was the base of Harappa economics and the is a granaries of the discover at the site like a Harappa, Mohenjo-daro and Lothal serves a storehouse of the grain. We do not have any clear evidence of the tool used for the agriculture. However, the forms of the plugging mark has been to observe in a field at the Kalibanga, and this indicate the plugging cultivation. The terracotta is the plugging has also been to reported from to the Bangwalis and Hisar district of Haryana. The irrigation was carried on there is a small scale by the drawings. Water from well are diverting river water into the channel. The chief food crops included beet, berries, sums, mustard, peas, and jevos, etc. And there is evidence from the rice as common from a Lothal and Rangpur in form of the husk as embodied in the poetry. And there is a cotton was another important crop. A piece of hubens is a cloth has been found at a Mohenjo-daro. Apart from the cereals, fish, and the animal meat also formed a part of the Harappan diet. There is a most important here. The next topic here, industries and craft. The Harappan peoples were aware of almost all the metal aspect of iron. There is a manufacture gold and silver object. The gold object include beads, amulet, and the needles, and the other is ornaments. But the use of the silver was more common than gold. A large number of silver is ornament of the dishes, etc. has been discovered. A number of copper tools and the weapon have also been to discover. The common tools include axes, sweeps, and chisel, and the canvas, and the sparrow head, and the arrow head. It is important to the note that is the weapon produced by the Harappan were mostly defensive in the nature, as there is no evidence of weapon like a sword, etc. The stones tools were also commonly used. A copper was about there is a mainly form of Kataris and the Rajasthan. The gold mine has been to the obtained from to the Himalayas, river, Veds and South India, and the silver from to the Mesopotamia. And we also have to the evidence of the use of the bronzes through there is a limited manner. The most famous is a specimen in this is regarded the bronzes is a dancing girl, and the figure is to discover as a Mohenjo-daro. The bead making is also was an important craft. The beads were made of the precocious and semi-precocious stone, such as the agate and the ceruleans, and stellarity was used the making of beads. The evidence of the beads makers the shop has been found in the Mohenjo-daro as on the Lothal. The gold and silver beads has also been found. Ivories is a carving and the inner used to the beads, and bracelets and other is the decorations were also in the practice. The Harappan thus show their masterly skill in the variety of art and craft.
Here show the picture there dancing girl of found of Monojodaru. There is a most important diagram here show of dancing girl and the found here Monojodaru. A well-known piece of art of the Harappans is a period is a stone sculptures of the beardeds a man discovered of Mohenjo-daro. His eyes are half closed, indicating a posture of meditation. Across the left shoulder on the embroidered is a cloax and there are opinions of the some scholar it could be a bust of priest. A large number of terracotta is a figurines of the male and female has been to discover from to the various Harappa site. The female is a fragrance is outnumbered those of male and the believed to the represent their worship of mother goddess. And besides this is a variety of model of bird, monkey, dog, sheep, cattle, hamper and hampeless bull are found. However, there is a not of all these specimens in their regard are the various model of terracotta card. The pottery making was also an important industry in Harappa period. There is the most important here poetry making was important industries is a Harappa period and this where is a chiefly is a well is a made and where is a treated with the red coatings and had a is a decorations in a black. They are found to the various size of the shape. Their painted design consists of the horizontal lines of varied thickness is a leaf patterns and plane and the people trees. People trees is the and bird, fish, animals are also depicted on the poetries. That is the most important here. The Harappan manufactures the seal of the various kind. More than 2000 seals has been to discover from a different side. And this where is a generally square in shape and where is a made of the satellite and it's a note is a worthless that is will seal is a depict a number of any yani animal there is a no is a representation of the horse and this. It was a leader many a scholar to the acquire argues and that is a horse was a not now to the Harappan people. Though there is other who do not accept this agreement. Besides, there are various kind of animals. The Harappan as seals is a contain some sign in the Harappan script, which however has not been to the deciphered so far. The most famous of seal in the one with their hornet is a male dexterity of represented on its. He is has a tree's head and there are sitting in the yogic is a posture. Yogic picture is a surrounding by four animal by the elephant, tiger, rhinoceros and buffalo. He has been to identify by the many scholars with the ascent from of the god Pasupati, Lord of West, and there is this other is a who bestowed with the identification. Here show the Pasupati. There is a most important diagram, but clearly no show, but most important. Or also important is a many types of diagram here. The first diagram show here, there is a most important on find of the Harappa civilization. And next here show the terracotta of human and animals of this picture. There is a most important here on the human and animal diagram and picture. Here show the battleman on picture. There is a most important here found of the Harappa civilization. There is a most important picture on this screen. Here picture show a terracotta card from to Kalibanga. There is a most important figure here show. This diagram is show on the terracotta and found there is a Kalibanga. The next point here are trade. Trading network as a both internal with the is a country and external foreign was a significant features of the urban economic or Harappans. As the urban population had to be depend on the surrounding countryside from the supply of food and many other necessary products. There is a merge of village, town, rural, urban interrelationship, and the similarly, the urban is a craftsman is needed a market to the sell their goods in other area. It is led to be a contact between to the town. The traders also established a contact with the foreign land, particularly of
Mesopotamia, and where is the goods were in the demand. There is the most important here. It is important to the note that the various kind of metal and the precious of stone were needed by their craftsmen to make a goods. But as they were not available is a locality, there had to be a both lead there from outside. The presence of such a raw material found at a site away from the place of its origin naturally indicate it's the most have reached there though there is exchange activity. The Rajasthan region is rich in a copper deposit, and the Harappan acquired a copper mainly from to the Khatris mine located here. The Kolar gold is a field of the Karnataka and the rivers bed of the Himalayas river and mine has been to supply the gold. The source of silver maybe has been to the Jawar mines of Rajasthan. It is a belief that most have also come from their Mesopotamia, an exchange of the Harappan goods. Among their precious stone used to the making of beads, their source of lapis is lazuli. Was localized is a Barokhasan mine in the northern east of Pakistan. Turquoise as a jaded mine has been to the both Lydia, Central Asia and West India is a supply. A great is the Chakolo Kamandi of the Karelian. This is a seal cell and the most from there has from the Gujarat and the to the coastal area. There is the most important and timber of good is a quality and other is a forest product where is a forest obtained from to the northern villages such as the Jammu. The Harappan where is engaged in the external trade with the Mesopotamia. It is a largely is through the Oma and the Brahmin in their Persian Gulf. It is confirmed by their presence of the Harappan artifact such as a bear, shield, disc, etc. in these regions. Though there is after is fact from those regions are rarely found in the Harappan site as a seal of West Asian or the presence of origin has been to discovered at the Lothal, which is the confirmed the contact is a Mesopotamian city like a Susa, Ura, and etc. And they have added to the about the 2 dozen of Harappan seals. Besides the seals, other is an artifact of Harappan origin and which has been to discover include poetries, etches, and the craniums and the beads and the dishes of with the Harappan features. The inscriptionally is evidence from the Mesopotamia also provide us with the as valuable information on Harappa contact with the Mesopotamia. And these inscriptions are referred to the trade with the Dulimu or the Magan and the Meluhua. Scholars have identified a Mehula with the Harappan's regions and the Magan with the Markran is a coastal is a Dil month in the Brahmin. They indicate there that is a Mesopotamia is imported to copper, Karelians and ivory, cells, lapis, lazulus and pearls as the embonings from the Mehula. The export from the Mesopotamia is Harappans include items such as the garments, booze, perfume, leather product and silver. Expect silver, all this is a product are perishable. This may be a one important reason why we do not find the remain of this good at Harappan cities. यहाँ पर देखा जाए तो हम हड़प्पा सभ्यता के जो है आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिर आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो अनुसार जो है कृषि की क्या व्यवस्था थी। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो है समृद्ध इसकी जो है फली फूली और विकसित भी हुई आर्थिक गतिविधियों पर जो है आधारित थी, जैसे कि कृषि, कला, शिल्प और व्यापार। सिंधु नदी के उपजाऊ जो है कछाड़ भूमि ने यहाँ की जो है अत्यधिक कृषि उपज में अपना भारी योगदान किया। इससे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर और उद्योग विकसित करने में भी सहायता मिली। कृषि के साथ साथ पशुपालन जो है हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थानों पर मिले जो है कोठार अन्य भंडार के काम में लिए जाते थे। जो कोठार था वो बहुत बड़े होते थे और उसमें देखा जाए तो अन्न भंडार किया जाता था।
कृषि के कामों में प्रयुक्त औजारों के संबंध में हमारे पास कई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी कहते हैं कालीबंगन के खेत में हल चलाने या जुताई के लिए कुछ चिन्ह देखने को आए हैं। ये संकेत मिलता है कि ये हल खेती की जाती थी, यानी हल से खेती करने का हमें कुछ साक्ष्य जो है प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है? कालीबंगन के खेतों से हमें ये प्राप्त हुई है। हरियाणा के हिसार जिले में जो है बनवाली से मिट्टी से बने हल के मिलने की सूचना हमें मिली है। कुएं में पानी निकालकर छोटे पैमानों पर और नदियों के पानी का नहरों के जरिए जो रुख मोड़कर खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो ये पद्धति काफ़ी जो है हमारे जैसे विकसित थे कि बड़े बड़े नहरों के जो है मोड़ देना आम बात नहीं थी। मुख्य खाद्य जो है फसलों में गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, मटर और राई इत्यादि शामिल थे। लोथल और जो है रंगपुर में जो है मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी से बचे हुए कणों से वहाँ चावल की बड़ी खेती की साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है। कपास यहाँ की एक अन्य प्रमुख फसल थी। कहते मोहनजोदाड़ो में बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है। अनाजों के अतिरिक्त जो है मछली और पशुओं का मांस भी हड़प्पा लोगों के लिए आहार का मुख्य हिस्सा था। इसका भी हमें जो है स्कॉलर्स ने इस बात की जो है साक्ष्य प्रमाण जो है दिया है। तो इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो हर तरह से जो है विकसित थे। तो अगर हम बात उनके करें उद्योग और शिल्प की, तो चलिए देखते हैं हमारा उद्योग और शिल्प क्या है। उद्योग और शिल्प के में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के अतिरिक्त जो है लगभग सभी प्रकार के धातुओं से परिचित थे। यानी हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो है धातुओं से भली भांति परिचित थे और सोने और चांदी की वस्तु बनाते थे। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयां और जो है अन्य गहने शामिल थे, परंतु सोने से ज़्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रबलन में था। यानी चांदी का लोग अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। जो कहते हैं बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तस्तिरियाँ इत्यादि प्राप्त हुई है हमें। तांबे के औजार और जो है अस्त्र भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। सामान्य औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, चाकू, भाले के नोक और तीरों के जो है सिरे इत्यादि शामिल है। ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए शस्त्र ज़्यादातर जो है सुरक्षात्मक प्रकृति के थे, क्योंकि उस समय तलवार जैसे शस्त्रों को मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए वो लोग जो है इस तरह के चीज़ों का उपयोग किया करते थे, क्योंकि तलवार जैसी चीज़ें उस समय हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। पत्थरों के जो है औजारों का भी आमतौर पर उपयोग होता था। तांबा राजस्थान में खेतहरी नामक स्थान से आता था और जो है सोना हिमालय नदियों की तराई और दक्षिण भारत में से आता था और चांदी जो है मेसोपोटामिया से आता था। हमें कांसे के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं, परंतु बहुत ही सीमित स्तर पर। यानी हमें पता है कि कांसे का भी उपयोग करते थे, लेकिन इसका प्रमाण बहुत ही जो है सीमित है। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध नमूना है मोहनजोदाड़ो से मिली कांचे से बनी एक नग्न का एक मूर्ति, यानी एक नृत्यांगना की जो कि नग्न तस्वीर है, ठीक है एक मूर्ति मिली है जो कि ये नग्न नारी की एक मूर्ति है, जिसका एक हाथ जो है नितंब पर है और दूसरा जो है नृत्य की मुद्राओं में है, हवा में झूल रहा है और इसे बहुत जो है साड़ियाँ चूड़ी पहन रखी है। तो ये चित्र भी बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है जो यहाँ उस समय मिली। कहते हैं मानकों बनाने की कला में ही जो उस समय थी बहुत ही प्रमुख शिल्पकारी थी और बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती बनाए जाते थे, जैसे गोमोद, अगेट और दो कनेलियंस। मोती बनाने के लिए जो है सिडलटाइट का उपयोग होता था और चंद्रहारों और लोथल में मोती बनाने वाले की दुकानों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। सोने और चांदी के मानकों भी प्राप्त हुई है और हाथी दांत की नक्काशी और मोतियों, बाजूबंद और अन्य जो है साबची सामानों पर भी मीनाकाशी का काम भी चलन में था। अंततः हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों को अनेक कलाओं और शिल्पकारों की कामों में दक्षता प्राप्त थी। हड़प्पा काल की कलाकृतियों में प्रमुख जो है कलाकृति जो है मूर्ति है। मोहनजोदाड़ो में मिली है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर से बनी एक मूर्ति। इसका आंखें जो है अंध बुंदी है, जैसे कि ये ध्यान मगन में मुद्राओं में दिख रहा हो। इसके जो है बाएं कंधे पर जो है काशितकारी किया गया जो है दुशाल है और कुछ जो है विद्वानों का मत यह है कि किसी जो है प्रचालक या छड़ हो सकता है। तो देखिए सबका अपना अपना विचारधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हड़प्पा के अनेक स्थलों से पुरुषों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी के मूर्ति प्राप्त हुए हैं। महिलाओं की मूर्ति की संख्या पुरुषों की मूर्ति से कहीं अधिक है और ऐसा माना जाता है कि ये मात्र देवी की पूजा के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है पक्षी, बंदरों, कुत्ते, भेड़, पालतू पशुओं और कुब्बर सहित और जो है कुब्बर रहित बैलों के अनेक प्रकार की मूर्तियों के नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। फिर भी इस
संबंध में सबसे उल्लेखनीय नमूना है पक्की मिट्टी की बनी गाड़ियाँ। मिट्टी के बर्तन बनाना भी हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था और ये मुख्य रूप से चाक पहिए पर बनाए जाते थे, जो आज के समय में भी बनाए जाते हैं। और इस पर लाल रंग करने के बाद काले रंग से जो सजावट की जाती थी और ये विभिन्न आकारों और शक्लों में पाए गए हैं। चित्रकारी की सजावट की जाती थी और विभिन्न प्रकार शक्लों में पाए गए और चित्रकार के नमूनों में अलग अलग मोटाई की आड़ी, लकीरें, पत्तों के नमूने, पाम और पीपल के पेड़, पक्षी, मछली और पशु इत्यादि के चित्र भी हमें मिट्टी के बर्तनों पर बनाए गए हैं। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के मोहरे बनाते थे। विभिन्न स्थानों से लगभग 2000 से भी ज़्यादा मोहरे हमें प्राप्त हुई है। ये मोहरे आमतौर पर जो है चौकोर शक्ल में थी और शेलखड़ी से बनी हुई थी। ध्यान देने की बात यह है कि इस मोहरे पर अनेक पशुओं के चित्र थे, परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र हमें नज़र नहीं आया है। इससे जो हमारे विद्वान ये तर्क करते हैं कि हड़प्पा के लोगों में घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी घोड़े के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। यद्यपि ऐसे विद्वान भी है जो इस मत को सहमत नहीं है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के अतिरिक्त हड़प्पा के मोहरों पर जो हड़प्पा काल की लिपि के कुछ चिन्ह भी हमें बने मिले हैं, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्रसिद्ध मोहर वह है जिस पर सिंघों वाले एक जो है पुरुष देव का चित्र बनाया गया है। इसके जो है 3 सिर हैं और ये जो है पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है और चारों तरफ से हाथी, बाघ, गेंडा और एक भैंस जैसे जानवरों से घिरा हुआ है। अनेक विद्वान इसे जो है भगवान पशुपति यानी पशुओं के देवता को मानते हैं, का प्राचीन रूप मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का इस विचार पे काफ़ी मतभेद है। तो चलिए, कोई भी भेद हो इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं हर का अपना विचारधारा होती है। ये जो है पशुपति का है, जैसे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो है सिंह, एक बहुत बड़ा मुकुट लगा हुआ है और इधर एक शेर का चित्र दिखाया गया है, इधर एक गेंडा का चित्र दिखाया गया है, नीचे हिरण का चित्र दिखाया गया है। तो ये जो है एक मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी पद्मासन में बैठ के जो है एक मुद्रित मुद्रा दिखाई गई है और चारों तरफ जो है पशु ही नज़र आपको आ रहा होगा। तो इसी को ही पशुपति कहा गया है कि ये पशुओं का देवता थे और जो चारों तरफ उनके आसपास पशु के ही देखने को मिला है। तो ये डायग्राम कई मानने में इम्पोर्टेंट था, और इम्पोर्टेंट तो वो भी था कि जो हम जो देखे थे कि एक जो है स्त्री का जो है जो नृत्य मुद्रा में है। चलिए देखते हैं नृत्य मुद्रा के जो चित्र है वो किस प्रकार का है। देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही आकार में छोटा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो है स्तंभ पे जो है अपनी हाथ रखी हुई है और नीचे हाथ पूरा रखा हुआ है, और ये महिला ने पूरा में चूड़ी पहन रखा है और ये एक नग्न अवस्था में है। कहते हैं ये मुद्रा हो सकती है कि डांस की मुद्रा हो, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम था, चित्र था, जिसको आज भी संग्रही करके रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ दर्शाता है। अगर बात हम करें उस समय और भी हमें चित्र मिले और भी हमें नमूना मिले, तो उस नमूनों को पहचान करना और जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि वो सारे किस प्रकार के थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त जो हुई है, जो हमें मिली है मिट्टी के बने हुए चित्र, ये बहुत काफ़ी विशेष और इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक और भी मिली है, ठीक है, कई चित्र जो मिले हैं उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार के जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये चित्र भी काफ़ी कुछ कहने को तैयार है। ये माटी के जो मिले हैं मूर्ति, इसमें मानव और जो है पशु का चित्र है जिसको माटी से बनाया गया था। तो आखिर किस लिए इस माटी के मूर्ति को बनाया गया, क्या उनका उद्देश्य था और किस लिए बनाया गया, तो ये सब बातें जो है सभी जो है स्कॉलर ने अपनी अपनी विचारधारा रखा है। तो इसमें हम जो है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये सारे जो है जो मिले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस समय के जानने के लिए काफ़ी जो है पर्याप्त है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो है हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वो है दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, जो कि आपके समक्ष है। देख सकते हो कि इस मूर्ति का जो है अपना एक विशेष स्थान है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ ये मूर्ति काफ़ी विशिष्ट और काफ़ी जो है कुछ बता रही है, जिसको जो है आज तक स्कॉलर समझ नहीं सके हैं। और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस मूर्ति की क्या विशेषता थी, किस बेस पे जो है इसको बनाया गया और इसका क्या उद्देश्य था। उसके पश्चात आता है कालीबंगन में मिली जो है पक्की मिट्टी की गाड़ी। देखिए, ये गाड़ी जो थी वह कई अमाउंट में हमें प्राप्त हुई है, जो कि काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट दर्शा रहा है। आखिर इसका उपयोग किस लिए होता था, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का, तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर आप सोचिएगा तभी जान पाइएगा कि इसका जो है बनाने का क्या उद्देश्य था, किस बेस पे इसको बनाया गया था, इसका क्या
अर्थ था। तो कालीबंगन में मिली पक्की मिट्टी की गाड़ी जो है अभी भी बहुत सारे राज को जो है दबाए रखी है। इसको जानना स्कॉलर के लिए बहुत काफ़ी जरूरी रहेगा। उसके पश्चात है व्यापार। देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्रकार की होती थी, ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर व्यापार की बात करें तो हड़प्पा के लोगों के जो है नगरीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनका आंतरिक देश के अंदर और बाहरी विदेश में दोनों तरह की जो है व्यापारिक तंत्र जाल नेटवर्क बने हुए थे। नगर की आबादी अपने खाद्य और अन्य जरूरी चीज़ों के लिए अपने आसपास के गांवों पर निर्भर थी। इसलिए गांव, शहरों और ग्रामीण नगरों के परस्पर संबंध विकसित हुए। इसी प्रकार शहरों के शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी। इससे शहरों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित किया हुआ। व्यापारियों ने विदेशी भूभागों को विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। यहाँ इन चीज़ों को अधिक मांग थी और ध्यान देने की बात यह है कि शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बनाने के लिए अनेक प्रकार की धातु और बहुमूल्य रत्नों की जरूरत पड़ती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय हड़प्पा जो कल्चर के लोग थे उन्होंने मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया और इसकी जानकारी हमें जो है उस समय प्राप्त जो है कुछ मुद्राओं से भी हमें मिलती है। परंतु स्थानीय रूप में उपलब्ध न होने के कारण इन चीज़ों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। अपने उद्गम स्थान से दूर इस कच्चे माल की दूसरे स्थानों पर जो उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से ये संकेत मिलते हैं कि ये वस्तुएं निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं के विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से ही वहाँ पहुँची होगी। तो ये बात तो साफ हो गया कि विनिमय माध्यम से ही पहुँचा होगा, क्योंकि आप भी देखते हो कि पैसे जो होते हैं हम ऐसे नहीं पहुँचाते हैं, कोई कारण होगा तभी जाता है, यानी यहाँ पर विनिमय जरूर होती होगी। इस प्रकार राजस्थान के तांबे की जो है बहुलता होने के कारण हड़प्पा के लोग यहाँ खेतड़ी स्थित तांबे की खानों से जो है मुख्यतः तांबा प्राप्त करते थे। कर्नाटक में कोलार स्थित सोने की खानें और हिमालय नदियों के तराई के क्षेत्र में संभवतः सोने की पूर्ति होती थी। चांदी का शोध शायद राजस्थान की ज्वार इस खानों रही होगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चांदी संभवतः हड़प्पा की वस्तुओं के विनिमय के बदले में दी जाती थी। यानी देखा जाए तो राजस्थान जो शेष जो है मेसोपोटामिया से भी इसको काफ़ी मात्रा में प्राप्त की जाती थी। मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बहुमूल्य रत्न जो है नील, पैदुल, मणि का जो है स्रोत अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व से जो है बदख्शान खानों में स्थित था। फिरोजा और हरिताशम शायद मध्य एशिया की से लाए जाते थे। अगमोद और जो सफिक्टिक और कैनोलियंस की आपूर्ति पश्चिम भारत से होती थी। सीप शंख इत्यादि जो है गुजरात और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों से आते होंगे। अच्छे किस्म की इमारती लकड़ी और अन्य वनोत्पाद जो है शायद जम्मू जैसे उत्तरी क्षेत्र से आते होंगे। हड़प्पा के लोग जो है मेसोपोटामिया के साथ विदेश व्यापार भी करते थे और यह व्यापार मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में स्थित जो है ओमान और बहरीन के जरिए होता था। पहाड़ के क्षेत्रों में मिले मोती, मोहरे, पासे और गोटियां जैसी कलाकृतियां इत्यादि की जो मौजूदगी इसे इसकी पुष्टि भी करती है। यद्यपि उन क्षेत्रों की जो है कलाकृतियां हड़प्पा के स्थानों में बहुत ही कम स्थानों पर मिलती है। परंतु पश्चिम एशिया या जो है पारसी मूल की एक मुहर जो लोथल से प्राप्त हुई है जिससे इस संबंध की पुष्टि होती है। कहते हैं सूसा, उर और मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें मिली है। यानी सुरसा, ऊर और मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें हमें मिली है। मोहरे के अतिरिक्त हड़प्पा मूल की जो अन्य कलाकृतियां वहां मिली है उनमें मिट्टी के बर्तन, स्क्रीन कार्य के किए गए कैनोलियंस की मोती और पासे भी शामिल है। मेसोपोटामिया के जो है मिले शिलालेखों से हमें हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया के संपर्क संबंध में बहुमूल्य सूचना भी मिलती है। इन शिलालेखों से जो है दिलमूस, मगन और जो है मेलुहूल के साथ व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। यानी मेलुहूल जो है व्यापार के मुख्य केंद्र थे और विद्वानों ने जो है मेलुहूल को हड़प्पा के क्षेत्र के साथ, मगन के जो है मकरान तट के साथ और दिलमून के बहरीन के साथ संपर्कों की पहचान भी किया है। इससे संकेत मिलते हैं कि मेसोपोटामिया जो है मेलुहूल के तांबा, कैरोलिन्स के हाथी दांत और सीपियां जो वैदमानी मोती और अवन मसूस आयात करता था। मेसोपोटामिया से हड़प्पा के निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में शामिल थे और तैयार कपड़े, ऊन, इत्र,
चमड़े की वस्तु और चांदी। चांदी के अतिरिक्त ये सभी वस्तुएं जो है नशवान थे और ये मुख्य कारण रहा कि होगा कि जिसकी वजह से हड़प्पा के स्थलों पर हमें इस वस्तुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो देखा जाए तो बात वही है कि हमें वही अवशेष मिले हैं जो लंबे समय तक जो है धरती के गर्भ में रह सकते थे। सोशल डिफरेंटेशन, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, सोशल डिफरेंटेशन, देयर आर पार्ट ऑफ द हड़प्पा civilization. The Harappa societies appear to has been to the is a matricals in a nature. The matrical in the nature there is a view is a base on there is a purities of their mother goddess, as indicated by there is a finding of a large number of terracotta female figurines in Punjab and Sindh regions. As a Harappan script has not been to the decipheration till now, and we have to be satisfied ourselves with his limited information on this issue. The Harappa society is comprised of people following diversity of professions. There is there is a priest, there is a warriors, peasant and traders and the artisans. The masons, weaver, goldsmith and poetry etc. There is structural is a mine at the side such as Harappa and the Lothal show there are different types of building that were used is a residence by different classes. The presence of class of the workman is provided to the workman is a quarter near the galleries at their Harappa. Similarly, their workshop and the house meant for the copper smith and the bed makers has been discovered at the Lothal. In fact, we can say that those who live in the larger houses belong to be the rich class, whereas those live in the barracks like workman quarter were from the class of labor. Our limited knowledge about there is a dress styles come from to the terracotta figurines and the stone is a sculptures of the period. Men are mostly show the wearing a dress wrapped around there is a lower half of the body with one end warm over to left shoulder and under to the right arm. The other is a garment was a skirt like a dress to cover the lower portion, and they use a cotton and the woolen cloth. A piece of woven is a cloth has been to found at the Monojodharo, spindles and there are needles discovered at the many sites attached to be a practice of spinning and the weaving. That is the most important here. The Harappan people is a love to be decorate himself. Here dressing by the both man woman evident from two fingers and found at a different side. The man as well as the woman arrange their hair in different style, and the people were also found of the ornament and this is a mainly is included a necklace, armlet, earrings, wear and bangle etc. used by the both of sexes, and the rich peoples is appeared to has used to the ornament of gold, silver and semi-precious stone will their poor satisfied themselves there with the loss of terracotta. यदि हम बात करें सामाजिक विशेषताओं की तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है सामाजिक विशेषताएं, ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोगों को समाज जो है माँ संतात्मक प्राकृतिक का था, यानी माता का जो है चलता था। यानी अभी देखा जाए हमारा समाज जो है पितृ है, तो यहाँ पर मात्र समातक प्राकृतिक का था और इस मत का आधार है मातृ देवी की लोकप्रियता, जैसे कि पंजाब और सिंध प्रदेशों में बड़ी संख्या में मिली पक्की मिट्टी के बनी नारी मूर्ति के संकेत से मिलता है। यानी देखा जाए तो माता देवी की मूर्ति जो है इस बात को साक्ष्य है कि उस समय जो मातृ प्रधान समाज हुआ करता था, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के समाज में जो है विविध व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल थे। इसमें पुजारी, योद्धा, किसान, व्यापारी और कारीगर सम्मिलित थे। राजगुड़ और बुनकर, सुनार, कुम्हार इत्यादि भी शामिल थे। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों में मिले मकानों के ढांचों से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के लोग द्वारा आवास के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के कोठार के पास बने कारीगरों के घरों से इस वर्ग के कारीगरों की उपस्थिति संबंध में हमें पुष्टि होती है। और इसी प्रकार लोथल में तांबे का काम करने वाले कारीगरों और मोती बनाने वाले कारीगरों के जो है
शालाओं और उनके लिए आवासीय घरों के मिले के भी प्रमाण हमें मिले हैं। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि ये लोग बड़े घरों में रहते थे और वो धनी वर्ग से होते थे, जो कारीगरों के जो क्वार्टरों जैसे कोठरियाँ यानी बैरकों में रहते थे और वो मजदूर वर्ग में सम्मिलित थे। उनकी वेशभूषा के ढंग के संबंध में हमारी जो सीमित जानकारी उस काल के दौरान मिली पक्की मिट्टी और पत्थर की बनी महिलाओं की मूर्ति पर आधारित है। यानी हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो हमें मूर्ति मिली है उससे हमें ये पता लग जाता है कि उनका वेशभूषा कैसा रहेगा। कहते पुरुषों को अधिकतर जिस पहनावे में दर्शाया गया है उसमें नीचे के आधे भाग में चारों ओर एक धोती सी बंधी है, जिसका एक सिरा बाएं कंधे और दाएं बाजू के नीचे है, और एक अन्य पोशाक है जो चोगे ढीला कपड़ा की तरह जो है परिधान है, जैसे शरीर के निचले भाग को जो है ढका गया है। और वे लोग सूती और ऊनी कपड़े जो उपयोग में लाया करते थे। मोहनजोदड़ो में बुनाई किया गया एक कपड़ा मिला है। अनेक स्थानों पर मिली जो है तख्तियों और सुइयों से ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय कताई और बुनाई का जो है काफ़ी प्रचलन थी, यानी हमें उसमें कताई बुनाई का भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे चीज़ें बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय उनकी वेशभूषा किस प्रकार की रही होगी। हड़प्पा के लोगों को सजने और संवरने का बहुत ही शौक था और विभिन्न स्थानों पर मिली पुरुषों और महिलाओं की मूर्ति से बाल संवारने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। पुरुष और महिलाएं अपने बाल को अलग अलग तरीके से संवारते थे और ये लोग जो है आभूषण पहनने के भी शौकीन थे। इसमें मुख्य तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो है नेकलेस, बाजूबंद, कानों के बूंदे, मोती, मन के चूड़ियाँ इत्यादि शामिल थी। ऐसा लगता है कि धनी लोग सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने गहने पहना करते थे, जबकि निर्धन लोगों को पक्की मिट्टियों के गहने से ही संतुष्ट होना पड़ता था। तो ये साक्ष्य जो है उस समय के लिए काफ़ी पर्याप्त है। Our next topic is religious is a beliefs and the practice. There is the most important here, religious belief and the practice. They are part of the Harappan civilization. So our knowledge on the religious belief and the practice of the Harappan is largely based on the Harappan's seals and the terracotta figurines available to us. The Harappa religious is normally termed as the animism and the worship of trees, stone, etc. A large number of terracotta figurines are discovered at the Harappan site has been to the association with their worship of Mother Goddess. Many of these is a represent of females ornaments with there is a wild gold loins and cloth as a necklace. And there is a fan shaped the head dress. In some case, the female is shown with hairs in fan, while there is one that is show the plant growing out of the uterus of a woman. The latter types of probably symbolize their goddess of the earth. There are many scholars who is referred to the worshipping of the Ilinanga is a half-fall and the Yoni is a female sex organ by the Harappans, but some of the doubtful about it. Harappan belief in the male deity in the evident by their cell is a depicting are deleted with the buffalo horned head dress, sitting in the yokes and posture are surrounding by animal. Many scholars identify him with the god Pasupati, lord of birds, or proto Shiva. Truly, some are depth it is the in another instance or deities is a showman with the horns and the flowing hair standing nude between to the branches of people tree and the worshipper is a caning links in the front. It might be representing trees worship. Animal worship also appeared to be popular among the Harappans. The evidence of the fire worship has also been to found at some sites such as the Kalibanga and the Lothal. At the Kalibanga series of the rise to the bricks platform and the with the pit and containing ash and the animal bone has been to discover. There is identified by is a many scholar are of fire altar. This is also show that the Harappan living in the different area flowing different religious particles as there is no evidence of fire pit as the Harappan and Mohenjo-daro. The burial practice and their rituals related is with them has been to the very important aspect as religious any culture. However, in this is a context is Harappan cities has not yielded any as
is monumental and such as the pyramids of Egypt, of the royal cemeteries as a UR as a Mesopotamia, and the dead body were generally studied to the north-south direction with their head. Or here show the diagram of the is a goddess, a mother goddess here. There is a most important diagram here. Here show the mother goddess for the Mohenjo-daro, and second here symbolic is a pupils trees is a Mohenjo-daro. There is a most important diagram show here a mother goddess and symbolic pupils trees from the Mohenjo-daro. The Harappa civilization here dead body of the northern to southern side is a head, and toward the north and the feet is a to about to south. There are dead where is a beauty with the wearings a number of earthen pot. In some graves there are dead where is a beauties along with there is a goods such as the bangles, beads, copper, mirrors, and this may be indicate that is a Harappan is a belief in their after life after death. The life after death is the most important theory here. As the Lothal is a joint of the double vowels with the male and female body. Together we have discovered the Kalibanga has yard evidence of symbolic is a miracle along a miracle which is the content pot but no is a bone or skeleton. This difference is a practice in the different religious or Harappa civilization may be reflect is a diversity in the religious belief. Here show the diagram here a picture of hand-made bull seals from the Mohenjo-daro. There is a most important here bull seal from Mohenjo-daro found in the Mohenjo-daro site. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धार्मिक विश्वास और रीतियाँ। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या जो है धार्मिक विश्वास थी और क्या रीति रिवाज थी, तो इससे हमें जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और जानेंगे कि धार्मिक विश्वास उनका किस प्रकार की थी, रीति रिवाज वो किस प्रकार के मानते थे। ये हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम जो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। हड़प्पा के लोगों को धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज के संबंध में हमारी जानकारी अधिकतर हमें जो उपलब्ध जो है मूर्तियों पर आधारित ही है, यानी मूर्ति जो समय मिली थी उसी पर आधारित जो है यहाँ पर साक्ष्य है। हड़प्पा के लोग धर्म के आम तौर पर जो है जो उपासक यानी पेड़ों एवं पत्थरों के उपासक के रूप में माना गया है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों पर मिली पक्की मिट्टी की असंख्य मूर्तियां को मात्र देवी की उपासना के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें से अधिकांश मूर्तियों में जो है महिलाओं की चौड़ी सी जो है करधनी, बाल की खाल का कपड़ा और गले में हार पहन रखा है। ये पंख के आकार का जो है शिरोवस्त्र पहने हुए हैं। कुछ मूर्तियों में महिलाओं को गोद में एक शिशु जो है लिए दिखाया गया है, तो एक मूर्ति में एक महिला के गर्भ में एक पौधा उगता हुआ दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति शायद जो है भू देवी की प्रतीक है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा वासी लिंग जो है पुरुष यो नांग और योनि महिला की जो उपासक थे, यानी पुरुष और योनि और महिला योनि के उपासक थे, परंतु कुछ इस मत से जो है असहमत है। हड़प्पा वासियों का जो है पुरुष देवताओं में आस्था का साक्ष्य मिलता है, यानी देखा जाए तो हड़प्पा वासियों को जो है पुरुष देवता में आस्था के साक्ष्य में मिलता है। एक मुहर पर बनी एक आकृति से जिसमें एक पुरुष के सिर पर भैंसों के सींग वाला मुकुट है जो योगी मुद्रा में बैठा हुआ, जिसके डायग्राम हमने पहले भी देख लिया है, और इसके आसपास कई पशु भी हैं। अनेक विद्वान इसे भगवान पशुपति यानी पशुओं के देवता मानते हैं या आदि शिव के रूप में भी देखते हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों का इसे मतभेद है। एक अन्य मुहर में एक सिंगी वाले देवता की आकृति है जिसके जो है बाल हवा में उड़ते हुए हैं और ये नग्न है और पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच खड़ा है और एक उपासक घुटने के बल उसके समक्ष बैठा हुआ है। इसे पैरों की उपासना का पता भी चलता है। हड़प्पा वासियों के पशुओं की उपासना के प्रचलन का भी हमें प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होता है। कहते हैं ईसा पूर्व के मध्य देखने में आया है कि आबादी के क्षेत्र में सुकड़ने लग गए थे और उदाहरण उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा जो मूल रूप से जो है 85 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था और इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सुकुड़ कर रह गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ की आबादी किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए थे और इसका संकेत भी हमें मिलते हैं। कालीबंगन और लोथल जैसे कुछ स्थानों से हमें अग्नि की उपासना के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन के ईंटों से बने अनेक चबूतरे के पंक्तियां और उन पर जो है बने गड्ढों से राख और पशुओं की हड्डी भी हमें मिली है।
अनेक विद्वान इन्हें हवन कुंड मानते हैं। इससे यह भी दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में हड़प्पा वासियों ने विभिन्न धार्मिक रीति रिवाज जो है प्रचलित थे, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यताओं में थे। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो चित्र के रूप में है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो मातृ देवी का है। ठीक है, इनके जो है सर पे आप देख सकते हो कि मुकुट रखा गया है, तो इसको मातृ देवी जो है हड़प्पा लोग मानते थे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो से मिला प्रतीकात्मक पीपल वृक्ष, यानी यहाँ पर जो है हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, हर एक पिक्चर में देख सकते हो कि पीपल के जो है अपने अपने गुणों को दर्शाया गया है और यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ जो है इसको प्रदर्शन किया गया है। दूसरी तरफ जो है मोहनजोदड़ो की मातृ देवी की जो मूर्ति है, जिसको मैंने अभी बताया था, ये काफ़ी विशिष्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि इस प्रकार के उस समय जो है साक्ष्य हमें मिले हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो से जो है किसी भी हवन कुंड के होने का प्रमाण हमें नहीं मिला है। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में मिली किसी भी हवन कुंड के होने का प्रमाण हमें नहीं मिला है। दफन के रीति रिवाज और उनसे संबंधित धार्मिक कर्मकांड किसी भी सभ्यता के धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। यद्यपि इस संदर्भ में जो है हड़प्पा कालीन स्थानों पर मिले मिस्र पिरामिड जैसे इमारतों पर जो है मेसोपोटामिया स्थित दर में बनी शाही कर्मगाहों की तरह ही कोई भी इमारत नहीं मिली है। शवों के प्राय उत्तर दक्षिण दिशा में जो है लटाया जाता था, जिसमें सिर उत्तर की ओर और पांव दक्षिण की ओर होते थे। मात्र मृतकों को अलग अलग संख्या में उनके साथ मिट्टी के बर्तन रख कर दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में हमें शवों के साथ चूड़ी, मोती, तांबे के दर्पण और भी वस्तु जो है रखकर दफनाया जाता था। इसे यह भी संकेत मिलता है कि हड़प्पा वासी पुण्य जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 ऐसे ही कब्र हमें मिले हैं जिनमें महिला और पुरुषों के इकट्ठे दफनाया गया है। कालीबंगन में जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है दफनाए गए एक साक्ष्य भी मिला है, यानी एक कब्र मिली है जिसमें बर्तन रखे हुए थे, परंतु कोई हड्डियां या कंकाल उसमें नहीं मिली है। रीति रिवाज में पाई गई विविधताओं से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास प्रचलन थे। देखिए, ये सब बातों से साफ ये बात हो जाता है कि उनके रीति रिवाज विभिन्न प्रकार के और विभिन्न ढंग से हुआ करता था। क्योंकि अगर आप देखिए किसी कब्र में अगर बर्तन मिल रहा है, उसमें हड्डियों कंकाल नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही अजीब बात है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारी बातें जो है अगर हड़प्पा कल्चर की अगर हम उनके लिपियों को पढ़ सके, उनकी साक्ष्य को समझ सके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी रखता है कि मोहनजोदड़ो में मिली जो है कुब्बर वाले बैल की मोहर। देखिए, कुब्बर वाले बैल का मोहर कुछ इस प्रकार से हमें मिली है। ये देखने में कितना विशिष्ट और कितना ही जो है बहुत अच्छा साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। और इसकी कला आप देख के हैरान होंगे कि इतनी सफाई के साथ उन्होंने इसको जो है गढ़ा है। तो कुछ तो बात रही होगी हड़प्पा कल्चर में इस तरह के बैलों को बनाने का उद्देश्य। So our next topic is the script. The Harappan where is the literate of people or Harappan seal are engraved with the various sign or character. Recent studies suggest that Harappan script is consist about 400 sign and that it was written from the right to left. However, the script has not been to the displayed as yet. It is believed that there is used to the ideograms and graphical symbol or the character to the convey their idea directly. We do not know to the language there spoke through the scholar believe that there spoke Marathi and the dialect used to the Baluchis and people in the Pakistan today. However, the further research along can unravel there is a mysteries and the enable us to know about a more Harappan script. स्क्रिप्ट यानी लिपि। देखिए, लिपि जो है कई मानने में इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रखता है। हड़प्पा वासी शिक्षित थे। हड़प्पा की मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चिन्ह या आकृति बनी है। हाल ही में किया गया अध्ययन से यह संकेत मिला है कि हड़प्पा की लिपि में लगभग 400 चिन्ह हैं और इसे जो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, परंतु अभी तक इस लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा समझा जाता था कि ये अपने भावों को सीधे व्यक्त करने के लिए किसी भाव चित्र यानी चित्रकृतियाँ, चिन्ह या अक्षर का प्रयोग किया करते थे। हमें उनकी भाषा कोई भी जानकारी नहीं मिली है, परंतु कुछ विद्वानों का विश्वास है कि ब्रोही भाषा ये बोलते थे। ठीक है, यानी ब्राहुई भाषा जो इनका मुख्य बोली थी, जिस बोली को जो है पाकिस्तान के बलूची जो है लोग आज भी बोलते हैं। यद्यपि अभी इस
बारे में साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ गई कि पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर लोग बलूची भाषा बोला करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हीं में से कुछ व्यक्ति जो है अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। तो इसका साक्ष्य अभी तक मिला नहीं, तो इसके बारे में कुछ कहना स्वाभाविक बात नहीं रहे। डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा civilization. The Harappa civilization flourished till 1900 BC. There is the most important here. The Harappa civilization flourished till the 1900 BC. The period following this is marked by the beginning of the post-urban phase of later Harappan phase, and this phase was characterized by the gradual disappearance of the major traits such as town planning. Art of the written is a uniformity, is a weight and measure, is a homogeneous in a poetry, design, etc. There is the most important here. The decorations is a cover a period from to the 1900 BC to 1400 BC, and there was also the shrinkage in their settlement area. For instance, Mohenjo-daro was reduced to a small settlement of 3 hectares from to the original 85 hectares toward the end of the later phase. There is a population appear to have shifted to other area. It is indicated by there is a large number of new settlement in the outlying area of Gujarat, East Punjab, Haryana, and the upper Doabs is during the later Harappan period. There is a most important here, and some things of the decline of the Harappa civilization here. You may be wondering how did Harappan civilization come to an end? Well, scholars put forward many of theories in this regard. There is the most important here. The first here, it is suggested by some scholars that is naturally is climates such as a flood and the earth is a quake might has a causing the decline of the civilization. It is a belief that is earthquake might has been arise there level of the flood plain of the lower course and the Indo rivers. It's a blockade to the passes of the rivers water to sea and resulting in their flood which the mine has swept the city of Mohenjo-daro. However, this is only explained the decline of Mohenjo-daro as not be whole civilization. And second here, the increasing aridity and the drying up to the rivers is a Ghaggar, is a Haka, and the account of there is a change in the river's course according to the some scholar. Might have a contribute to the decline, and this theory states that there was no increasing and added to the condition by around 2000 BC. And this might has affected to the agricultural productions and led to be a decline. The next year is the Aryan invention theory is also put forward as a cause for the decline according to this. The Harappa civilization was destroyed by the Aryan who come to the India and from northwest around is a 1500 BC. However, on the basis of the closer and critical is analysis of the data, and this view is completely neglected today. And thus there is no single case that is explained to the decline of the civilization in the totality, and there is a maximum this can be explained the decline of the contained site or area only. Hence this theory has a meet with the criticisms and the nevertheless and the archaeologically is evidence indicate that is Harappan civilization did not collapse and also is a sudden but a decline gradually and ultimately is a merge with the other local culture. अगला टॉपिक जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का जो है 1900 ईस्वी तक जो है फली फूली रही। इस सभ्यता के बाद की अवधि को नगरी सभ्यता के बाद के चरण यानी उत्तरवर्तीय जो है हड़प्पावासी काल के रूप में जाना जाता है। इस काल की विशेषताओं को इस प्रकार से रेखांकित किया गया है कि इसमें नगर योजना, लेखन कला और माप तोलों में जो एकरूपता, मिट्टी के बर्तनों में समानता इत्यादि जैसे मुख्य लक्षण धीरे धीरे लुप्त होने लग गए थे। और यह अधोपतन जो है 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व मध्य देखने को आया है। आबादी के क्षेत्र में भी सिकुड़ने लग गए थे। उदाहरण उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा जो मूल रूप से 85 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था, इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सिकुड़ कर रह गया था। ऐसा लगता था कि यहाँ की आबादी किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई थी। इसका संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पा काल में
गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और अपर दोआब क्षेत्रों के जो है बाहरी क्षेत्रों में भी पाई गई नई बस्तियां को अनेक स्थापन हुई। तो ये बातें सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा कल्चर का जो है पतन कैसे हुआ। आपको हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इस संबंध में विद्वानों ने अनेक अपने अपने मत दिए हैं। पहला तो यही आता है, कुछ विद्वानों का सुझाव है कि बाढ़ और भूकंप जैसी जो है प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूकंप के परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के जो है निचले मैदान बाढ़ वाले क्षेत्रों का स्तर ऊंचा उठ गया होगा। इसे समुद्र की तरफ जाने की नदियों के तल मार्ग में रुकावट आ गई होगी और इससे मनोजोदारो के नगर डूब गया होगा। परंतु इससे केवल मनोजोदारो के खत्म होने का उल्लेख मिलता है, न कि पूरी सभ्यता का। और ये एक फिल्म में भी दर्शाया गया था, ठीक है, मनोजोदारो फिल्म में, जिसमें इस बात का जो है दिखाया भी गया था। कुछ विद्वानों का ये मत अनुसार जो है घाघर हाकार नदी के मार्ग में परिवर्तन आने के कारण भी जो है शुष्क बंजर धरती जो है बढ़ती चली गई होगी, जिसकी वजह से पतन हुआ होगा। इस सिद्धांत के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है बंजरता की परिस्थिति बढ़ती गई, इससे कृषि के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा, जिससे इसका लोप हुआ होगा। अगर तीसरी बात करें तो ये भी दर्शाता है कि पतन के कारणों में आर्य के आक्रमण के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आंकड़ों को आलोचनात्मक एवं गंभीर विश्लेषण के आधार पर अब इस बात को जो है पूरी तरह से नकार दिया गया है। अगर इस प्रकार कोई भी एक अकेला ऐसा कारण नहीं है जिसके संपूर्ण सभ्यता के विनाश का पता लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसके सिर्फ कुछ विशेष स्थलों या क्षेत्रों को नष्ट होने के संबंध में ही पता चल सकता है। अंत प्रत्येक सिद्धांतों की आलोचना हुई है, फिर भी पुरातत्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक तो नहीं हुई होगी, बल्कि वो धीरे धीरे हुआ होगा और अंत में ये सभ्यता अन्य सभ्यताओं में मिलती जुलती चली गई होगी। तो ये बात कई मानने में सही भी है, क्योंकि जो है एक पूरा सभ्यता खत्म होना स्वाभाविक बात नहीं है, और इस बात का जो है कोई भी स्कॉलर पूरी तरह से प्रमाण देने में सफल नहीं हुए हैं। The most important topic arrive here are Chalcolithics is a communities of the non-Harappans in India. There is a major Chalcolithics is a culture and there is a chief sites. The important non-Harappans is Chalcolithics is a culture maybe mainly in the western India and Deccan. There is include as a Bana culture the 2600 BC to 1900 BC in the southeast Rajasthan with the Har, the near Udaipur and the Gilland and the key site of the Karanatha culture. 2100 BC to the 2000 BC with the Karanatha is a Chambal as a chief sites of Madhya Pradesh is a Mawala culture. 1700 BC to the 1400 BC with there is a Navodaya is a western Madhya Pradesh in an important site and the Jewish culture. 1400 BC to the 700 BC with the Imogonas is a Chandolis near Pune, Maharashtra as the chief center. The evidence of the Chalcolithics is a culture also comes from to the eastern Uttar Pradesh of Bihar and the Bengals is a map. It may be noted that is a non-Harappan Chalcolithic culture is through the flourish in the different religions. They were marked by basic uniformities of various accepted such as there is a mud structure, farming and the hunting activity. Use of wheel is a made poetry. The poetry of this is a Chalcolithic culture include of course colors, poetry OCP, and black and red where is a BRW and there is a bean to found in the shape of various kind of walls, basins and spotted jar and the concave necks and dishes on stand etc. अगर भारत में हम गैर हड़प्पाई ताम्रपाषाण समुदाय की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं प्रमुख ताम्रपाषाण जो है चलकोलिथिक सभ्यताएं और उनके महत्वपूर्ण मुख्य स्थल और जो है गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण सभ्यताओं का विस्तार पश्चिम भारत और दक्कन में मिलता है। इसमें शामिल है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित वानस सभ्यता यानी 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व उदयपुर के निकट अरहर के जो गिलकुंड जैसे मुख्य स्थल सहित मलबा सभ्यता जो है 1700 ईस्वी पूर्व से लेके 1400 ईस्वी पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश में जो है नवदालतोलिस जैसे मुख्य स्थल सहित 11 जो है जैरबो सभ्यता जो 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र पुणे के पास स्थित है। मुख्य स्थलों जो है इनामंग गांव और इंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल में भी ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो है चलकोलिथिक
कल्चर्स के प्रमाण हमें मिले हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि गैर सभ्यता यानी चल्कोथिक सभ्यताएं विभिन्न प्रदेशों में फली फूली रही, परंतु उनमें कुछ जो है पहलियों में बुनियादी समानताएं थी, जैसे उनके मिट्टी के घर, खेती और शिकारी संबंधी गतिविधियां, चाक पहियों पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन इत्यादि। इस ताम्रपाषाण सभ्यताओं के मिट्टी के बर्तनों में शामिल थे गेरुए और कैरे रंग के बर्तन जैसे OCP, काले और लाल रंग के बर्तन जैसे PRW, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की कटोरियां, बेसिन, ठीक है, चोटीदार जार जिनकी जो है गर्दन संक्रिय थी और स्टैंड पर रखी तशरियाँ इत्यादि शामिल थी।